Hello students, we'll solve problem from parallel force system. Now in this problem, one circular plate is given and forces which are given, they are horizontal, right? All are horizontal. Some are leftward, some are rightward. देखो 80 Newton leftward, 100 Newton leftward, 50 Newton leftward, 150 rightward. That means all are horizontal, means this is which type of force system? Parallel force system. Now, first step in finding resultant of parallel force system is what? Simply will apply equation, right? Along x or along y axis, that depends on forces acting in which direction. In this problem, all forces are horizontal. Therefore, component of resultant along x axis means our resultant r means what? Rx. कैसा आएगा ये resultant? Just add करो सब forces along x axis, right? That one is applying what? Summation of fx equal to 0 means what? Forces acting in rightward direction, positive is our sign convention. Simple. अभी जो लेफ्टवर्ड रहेगा विल पुट विथ माइनस साइन, राइटवर्ड रहेगा तो विल पुट विथ पॉजिटिव साइन. If we start from 80, पहला फोर्स क्या है? 80 माइनस, राइट, नंबर 1. नेक्स्ट माइनस 100, नेक्स्ट माइनस 50, नेक्स्ट प्लस 150, राइट. अभी देखो इधर प्लस 150, ये माइनस 150 कैंसिल होगा. दैट मीन्स आंसर इज व्हाट? माइनस 80 न्यूटन. That means this 80 Newton is acting in which direction? It is acting in leftward direction. Answer positive रहेगा तो rightward, negative रहेगा तो leftward. देखो गड़बड़ कर दिया. This one is what? Leftward. 80 Newton leftward. Answer positive means rightward. Answer negative means what? Leftward. So this is nothing but what? Your magnitude and direction of a resultant. This is our first step. But in parallel force system, we have to find out what? Point of application. In step number 2, to find out point of application of force, what you have to do? We have to apply Varignon's theorem of moment. What will apply here? Varignon's theorem. क्या रहता है Varignon's theorem of moments? Varignon's theorem of moments. If you are recalling, very good. क्या है Varignon's theorem? कि any force system is given, will take moments of all forces about a point, will add that moments and will equate it to moment of resultant. That means एक है sum of moments of all forces and next term is what? Moment of resultant. And when we'll apply Varignon's theorem, important condition क्या रहता है? Direction of sum of moment and direction of moment of resultant must be same. Means summation of moment अगर clockwise रहेगा तो moment of resultant clockwise. Summation of moment अगर anti clockwise रहेगा तो moment of resultant must be anti clockwise. Simple. So what we'll do? I'll find out first one, sum of moments of all forces. Here convenient point is the center of plate, and what is the asking problem? Locate with respect to center of plate O. Here with respect to what? It is asked with respect to center of plate, right? And resultant of parallel force system is, first we'll find out what इधर आएगा, magnitude आ गए, right? And then locate point of application. With respect to, we'll take moment about point O. Our sign convention is what? Anti-clockwise movements positive. Now all forces are horizontal. That means सबका सब distances जो है, distances must be vertical. तो here 80 Newton force है, इसका जो distance है, if you want to find out, what we'll do here, I'll draw one vertical line. To find out this 150 Newton, we'll draw here vertical line. अभी आपका ये जो distance है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है 80 न्यूटन हॉरिजॉन्टल, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन. ये आपका मूवमेंट सेंटर है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल, ये डिस्टेंस है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ यू नो कि दिस वन से ओ, दिस पॉइंट इफ आई टेक एज ए, आपको ये ओ ए इज रेडियस एंड इज गिवन, रेडियस इज व्हाट? 1 मीटर. दैट मीन्स ये आपका है 1 मीटर डिस्टेंस. अब इसका अपोजिट टू एंगल निकालना है. 1 मीटर है हाइपोटेनियस, अपोजिट टू एंगल निकालना है तो क्या रहता है? साइन. साइन ऑफ दिस एंगल इज अपोजिट अपॉन, आई विल राइट से y. तो साइन ऑफ 30 मीन्स अपोजिट अपॉन hypotenuse. That means y upon 1 is sin 30. That means
here this distance will be what? 1 sin 30. So 1 I will not write here. This will be what? Radius is 1, therefore it becomes directly sin 30. Means what? Half. अरे सेम डिस्टेंस इधर भी आ सकता है ना, देखो ये भी सेम है, ये अगेन दिस इज 1 मीटर मीन्स रेडियस, राइट? ये एंगल है 30 डिग्री, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इफ विल फाइंड आउट इट इज अगेन व्हाट? sin 30 मीन्स व्हाट? sin 30 मीन्स ये आ गया आपका हाफ। दैट मीन्स और ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ये सब वर्टिकल डिस्टेंस जो है अभी आपको आ गए सब, है ना? ये देखो डिस्टेंस हाउ विल गेट, तो ये आपका रेडियस इक्वल टू 1, अपोजिट साइड निकालना है मीन्स हाइपोटेन्यूज इनटू साइन, दैट मीन्स कैन यू से दिस इज व्हाट? साइन ऑफ 60 डिस्टेंस आ गया 100 न्यूटन के लिए। एंड ये जो है हियर इफ विल कंस्ट्रक्ट हियर ट्रायंगल, राइट? तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस एंगल 45 है, ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज व्हाट? ये रेडियस है, दैट मीन्स अपोजिट मीन्स क्या आ गया? r sin 45. So this will be what? Sin 45. Okay. Now, direction of movement is important. While finding direction, what you have to imagine कि assume OA is a rod. Inclined is what? A rod. And hold that rod at O and apply force in leftward direction. हाथ में पेन पकड़ने का, O पे पकड़ने का उसको, and at A apply force. तो rod OA will rotate in which direction? Anti-clockwise. अभी मूवमेंट देखो क्या होगा, प्लस 80, अरे डिस्टेंस कितना आ गया? sin 30 मीन्स हाफ। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट 100 न्यूटन। अगेन अज्यूम OB इज अ रॉड, होल्ड इट एट O, इधर पकड़ने का पॉइंट O पे, एंड 100 न्यूटन फोर्स इफ विल अप्लाई, दैट OB रॉड विल रोटेट अबाउट O। क्या डायरेक्शन में जाएगा? तो दिस विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स ये जो मूवमेंट है दिस इज ऑल्सो अगेन व्हाट? पॉजिटिव। प्लस 100 व्हाट डिस्टेंस? sin 60 है, sin 60 आपको पता है क्या रहता है ना, और यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन फाइंड आउट sin 60। हाँ, अब ये ओसी रॉड इमेजिन करो, मूवमेंट ड्यू टू 50 न्यूटन निकालना है, तो पेन पकड़ने का हाथ में एंड ओ पे होल्ड करने का उसको, राइट? ओ पे पकड़ने का, एंड ऐसा सेम इंक्लिनेशन जो है 45 पे पकड़ो एंड अप्लाई फोर्स इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ये रॉड किधर जाएगा? ऐसा, दिस विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मूवमेंट क्या आएगा? क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट? -50। अभी इसका डिस्टेंस तो ये sin 45 हो गया, राइट? दिस इज व्हाट? sin ऑफ 45। ओके, नाउ मूवमेंट ऑफ 150, assume OD is a bar, same rod you imagine OD, hold it at O, apply 150 न्यूटन फोर्स। ये किधर जाएगा? ये रॉड ये जाएगा आपका अगेन एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ये क्या होगा जी? प्लस, है ना? प्लस हाउ मच? 150 इनटू व्हाट डिस्टेंस? तो ये आपका sin 30 मीन्स आ गया आपका हाफ। ओके, तो दिस वन इफ विल ऐड, राइट? This one if we'll add finally using calculator, if we'll find out, this value comes out to be 166.25 Newton meter. Answer positive means what? Anti-clockwise आएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बट इन वेरिग्नॉन्स थ्योरम ऑफ मूवमेंट का इक्वेशन फॉर्म में विल राइट हियर, दिस वन इज व्हाट? summation of moments of all forces about any point O equal to moment of resultant about same point O. This is our इन इक्वेशन फॉर्म वेरिग्नॉन्स थ्योरम। अभी इसका क्या? पोस्टमार्टम। फर्स्ट व्हाट विल डू? समेशन ऑफ मूवमेंट इधर डालिए। अभी मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट से व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इक्वेट। नाउ हियर व्हाट विल डू? ऑल दीज फोर्सेस विल रिप्लेस बाय सिंगल फोर्स एंड इज कॉल्ड एज व्हाट? रिजल्टेंट। देयरफॉर अभी जो आपका ये जो सर्कल है, राइट, इसमें अभी सब ये फोर्सेस नहीं रहेगा। What will get here? Only resultant. Say this one is our circular plate. Okay, a circular plate. Now, in this circular plate, there are axes, है ना? तो this one I will represent here axis. This one is what? ये आपका आ गया y axis, right? This one is y axis which passes through center. This is nothing but what? ये आपका x axis which passes through center. This is x axis. This is what? y axis. अभी क्या डिसाइड करना है कि ये रिजल्टेंट जो है दिस वन, ये जो रिजल्टेंट आ गया है हॉरिजॉन्टल एंड लेफ्टवर्ड है, हॉरिजॉन्टल एंड लेफ्टवर्ड। ये है आपका पॉइंट O। सम ऑफ मूवमेंट इधर जो आ गया ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका जो मूवमेंट आएगा ना 80 न्यूटन का मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज।
अभी सपोज मैं इधर अगर रिजल्टेंट ऐसा इधर डाला, राइट, ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड अदर पॉसिबिलिटी इज व्हाट, कि रिजल्टेंट लेफ्टवर्ड एंड अबव, देयर आर नॉट टू पॉसिबिलिटी, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2. अभी 1 इज करेक्ट, अदर 1 इज नॉट करेक्ट, तो व्हाट विल डू, चेक मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ, डायरेक्शन चेक करने का है बस, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज. ये जो रिजल्टेंट है केस नंबर 1, इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट ओ क्या आएगा, ऐसा जाएगा, मीन्स व्हाट, ये क्लॉकवाइज जाएगा, है ना. तो दिस इज यू कैन से नॉट करेक्ट, बट ड्यू टू दिस सेकंड केस व्हाट आर आर रिप्रेजेंटेड, ये किधर जाएगा, तो दिस विल रोटेट, दैट मीन इधर से मूवमेंट का डायरेक्शन के लिए इमेजिन दिस वन इज अ बार, ये एक बार, इधर फोर्स लगाया, क्लॉकवाइज गया, नो नॉट करेक्ट. नाउ ये सेकंड केस में ये डिस्टेंस होगा, ये आर है, इधर बार पकड़ा, राइट, तो ये कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दिस पोजीशन इज करेक्ट. तो व्हाट विल डू हियर, आई विल represent it as a second case. I'll represent it as a second case. Okay. So this one if you'll represent, you'll get what? इसका distance मिल जाएगा. Now see here. अभी क्या करते हैं इसको? First, I'll represent this resultant. Okay. The resultant I'll represent where? Above this point O. So that मूवमेंट, ये रिजल्टेंट का मूवमेंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट. दिस इज योर आर. अभी इसका जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल अज्यूम सम डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस है, यू कैन राइट हियर एज व्हाट, वाई अज्यूम करो, राइट, वर्टिकल है तो वाई, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये एक्स, एनी अदर इंक्लाइन डिस्टेंस रहेगा तो विल अज्यूम इट एज व्हाट डी. अब ये जो डिस्टेंस है, दिस वन इज व्हाट, ये आपका सपोज डिस्टेंस वाई. तो व्हाट इज मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट टू, तो एंटी क्लॉकवाइज है. सम ऑफ मूवमेंट का डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट दोनों सेम रहना चाहिए. नाउ आई विल अप्लाई हियर Varignon theorem, our equation form. This one is what, sum of moments about this point O taking anti-clockwise movement positive equal to moment of resultant about O taking anti-clockwise movement positive. ये कितना है, 166.25. इसका मोमेंट क्या आएगा, देखो, r इंटू वाई. ये पॉजिटिव है, दिस वन मस्ट बी पॉजिटिव, यानी दोनों एंटी क्लॉकवाइज है. अगर इफ विल रिप्रेजेंट, सपोज कि वो रॉन्ग लोकेशन हो गया, तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दोनों अगर एक प्लस माइनस आता है मीन्स अज्यूम लोकेशन इज रॉन्ग. तो ये जो r इंटू वाई, आर कितना है आपका 80, ये y हो गए, दैट मीन्स ये y क्या आ गया 166.25, ये पॉइंट, डिवाइडेड बाय व्हाट 80, तो ये डिस्टेंस आएगा आपका 2.078 मीटर. बट अभी देखो इधर, इधर क्या हो गया है कि रेडियस तो इसका 1 मीटर है, ये रेडियस कितना है जी, ये तो 1 मीटर है, डिस्टेंस कितना आ गया 2.078, दैट मीन एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट आपका ऐसा आएगा. This is your position of resultant. But initially you was not knowing, therefore you can represent like this. There is no issue. But actually that is outside the plate. Outside the plate means from this one what is important, if you find out resultant of given flow system, that may lie on a given body or that may be outside the body. That is also possible. तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया ये फर्स्ट पार्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सेकंड ये आ गया आपका डिस्टेंस, एंड ये फिगर निकालना ही निकालना है, सो दैट दैट एग्जामिनर विल गेट आइडिया, और यू विल गेट आइडिया कि एक्चुअल रिजल्टेंट अबव पॉइंट ओ है, बिलो पॉइंट ओ है. ओके, चलो नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, विल स्टॉप हियर नाउ. थैंक यू.